نواز شریف آئینی ترمیم کی منظوری میں التوا پر ناخوش۔ آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے پیش کی تیاری اور ہوم ورک نہ کرنے پر نالا۔ صدر نون لیگ کی جلد بازی کی حکمت عملی تبدیل کرنے اور مولانا فضل الرحمان سے آئینی ترمیم پر تفصیلی مشاورت کرنے کی ہدایت۔ آپ اس میں خواتین کو دیکھ لیں، جو معاشرے کے پسے ہوئے طبقات ہیں ان کو دیکھ لیں، جو تفریق کی جاتی ہے انسان کے اندر، امیر اور غریب کے اندر، کالے اور گورے کے اندر، وہ سب تفریق انہوں نے منع فرما دی۔ اور ایکوالٹی جس کی آج بات ہوتی ہے، اس کا سب سے پہلا درس جو ہے وہ جو حجۃ الوداع کے وقت میں جو پہلا چارٹر ہیومن رائٹس کا، انسانیت کا پہلا چارٹر جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا سیرت کانفرنس سے خطاب، کہا عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کم ظرف کے لیے نہیں ہے۔ اسلام نے امیر غریب کی تفریق کا خاتمہ کیا۔ اسلام خواتین کے حقوق کا علم بردار ہے۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قیدیوں کی سزاؤں میں خصوصی چھوٹ کا اعلان۔ قیدیوں کی سزاؤں میں 90 روز کمی کی گئی۔ کمی کے طلاق، قتل، جاسوسی، ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث قیدیوں پر نہیں ہوگا۔ زنا، چوری، ڈکیتی کے مجرمان کو بھی رعایت نہیں ملے گی۔ مریم کی مسیحائی، دل کے مریضوں کی زندگیاں بچانے کے تاریخی پروگرام کا آغاز۔ چیف منسٹر چلڈرن ہارٹ سرجری پروگرام کے تحت مفت علاج اور آپریشن کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے چائلڈ سرجری کارڈ تقسیم کر کے پروگرام کا باضابطہ افتتاح کیا۔ وزیر اعلیٰ نے پنجاب کابینہ کا اجلاس آج طلب کر لیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس کچھ دیر بعد ہوگا۔ اپنی چھت اپنا گھر اور سی ایم گرین ٹریکٹر پروگرام کی منظوری دے دی جائے گی۔ پنجاب اسلحہ آرڈیننس میں ترمیم کی منظوری بھی ایجنڈے میں شامل ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب ہمت کارڈ کے اجرا کی تیاریاں مکمل۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز رواں ہفتے ہمت کارڈ کا اجرا کریں گی۔ محکمہ سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال کے مطابق صوبے میں 104 لاکھ سے زائد باہم معذور افراد محکمہ سوشل ویلفیئر کے ساتھ رجسٹرڈ ہو چکے ہیں۔ جلسہ کب، کہاں اور کیسے ہوگا یہ فیصلہ نہ ہو سکا۔ تحریک انصاف لاہور جلسے کے حوالے سے تذبذب کا شکار۔ لاہور قیادت نے جلسے کی اجازت کے لیے تاحال درخواست بھی جمع نہ کروائی۔ پاکستان تحریک انصاف نے 21 ستمبر کو لاہور میں جلسے کا اعلان کر رکھا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی 9 مئی کے مقدمات میں ضمانت کی درخواستوں پر سماعت۔ عدالت نے پروسیکیوشن سے دلائل طلب کر لیے۔ لاہور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کے جلسے کی اجازت نہیں دینے کے خلاف متفرق درخواست 23 ستمبر کو سماعت کے لیے مقرر کرنے کی ہدایت کر دی۔ پی ٹی آئی ایم این نے سعد اللہ بلوچ کی بازیابی کی درخواست پر سماعت۔ ہائی کورٹ نے سعد اللہ بلوچ کو 18 ستمبر کو پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے سرکاری وکیل کا اعتراض مسترد کر دیا۔ جسٹس فاروق حیدر نے زباریہ حسن کی درخواست پر سماعت کی۔ قانون پر عمل درآمد کرانے والے ہی خلاف ورزی کرنے لگے۔ ڈپٹی کمشنر آفس میں فائر سیفٹی آلات ہی موجود نہیں۔ سرکاری دفاتر میں آتش زدگی کے باعث نقصان کا خدشہ۔ سول ڈیفنس کا محکمہ آفس میں فائر سیفٹی آلات نہ ہونے پر کارروائی سے گریزاں ہے۔ پنجاب فورنزک سائنس ایجنسی میں جدت لانے کا مشن۔ پنجاب فورنزک سائنس ایجنسی نے 1 ارب روپے کے فنڈز مانگ لیے۔ ایجنسی کے لیے آلات اور مشینری خریدی جائے گی۔ نئی ٹیکنالوجی سے فورنزک سائنس ایجنسی کی استعداد کار میں اضافہ کیا جائے گا۔
पंजाब यूनिवर्सिटी इंतजामिया की कार्रवाई, LLB का पर्चा लीक करने के इल्जाम में 3 मुलाजमीन मअतल कर दिए। तर्जमान यूनिवर्सिटी का कहना है मुलाजमीन की मशकूक सरगर्मियों पर इंतजामिया को पहले से ही शक था। अफसरान की जानिब से सबूत मिलने पर मुलाजमीन को मअतल किया गया। सर अच्छी बात है कि पेट्रोल में जो है ना वो कमी हुई है, आवाम के लिए रिलीफ है कि जो ना इससे आवाम के लिए भी आसानियाँ पैदा होगी। लेकिन यह है कि हुकूमत को फिर भी चाहिए कि मज़ीद इसमें कमी करे, जैसे पहले पेट्रोलियम की मसनूआत में कमी थी, ताकि आवाम जो है वो जिस तरह से अभी यानी कि उसको दुश्वारियाँ पेश आ रही हैं, नेक्स्ट टाइम जो है ना उनके लिए इस तरह की दुश्वारियाँ पेश ना हों। बहुत अच्छी बात है, कम हुआ, मज़ीद होना चाहिए, मगर जो बेसिक चीज़ें हैं उनको कम करें ना। हमारे गरीब लोगों के लिए ये पेट्रोल इतना अहमियत नहीं रखता, खाने पीने की चीज़ें अहमियत रखती हैं, बिजली के बिल अहमियत रखते हैं, उनको सस्ता करें ना। सोचने वाली बात ये है कि गरीब अपना खर्चा पूरा नहीं कर रहा और ये जितने हुक्मरान हैं इनकी दौलत में इजाफा होता जा रहा है। लाहौरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को खुशाइन करार दे दिया। शहरी कहते हैं पेट्रोल मज़ीद सस्ता होना चाहिए ताकि महंगाई का ग्राफ मज़ीद नीचे आ सके। घी, दालें, चावल की कीमतें भी कम करनी चाहिए। उम्मीद है हुकूमत महंगाई में कमी के लिए मज़ीद इक़दाम करेगी। लाहौर में पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स का किरायों में 5% कमी का ऐलान। सदर ऑल पाकिस्तान ट्रांसपोर्टर्स ऑनर फेडरेशन नदीम मलिक कहते हैं हुकूमत चालान की शरह और स्पेयर पार्ट समेत टायरों की कीमत में कमी करे। हुकूमत से डीजल की कीमत में भी मजीद कमी का मुतालबा। पेट्रोलियम मसनूआत में कमी के समरात आवाम तक ना पहुँच सके। सब्जियों और फलों की कीमत में इजाफा जारी। अदरक 610, लहसुन 510, करेले 180 रुपए किलो, आलू बुखारा 340, अनार 280 और केला 160 रुपए दर्जन में दस्तयाब। पोल्ट्री मसनूआत की खरीदारी बदस्तूर, जेब पर भारी। मुर्गी का गोश्त 1 रुपए महंगा, 595 रुपए किलो में फरोख्त। फार्मी अंडों की कीमत में इस्तेहकाम, 305 रुपए दर्जन पर बरकरार। मार्केट में अंडों की पेटी 9030 रुपए में दस्तयाब है। मिलावट माफिया रबीउल अव्वल में भी बाज नहीं आया। पंजाब फूड अथॉरिटी ने मिलावटी दूध की तरसील नाकाम बना दी। 1500 लीटर मिलावटी दूध तल्फ कर दिया। डीजी आसिम जावेद का कहना है कि दूध में पानी की मिलावट और फैट इंतहाई कम पाई गई। मिलावटी दूध मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई किया जाना था। बागात के शहर में स्मोक का रोग बरकरार। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ गया। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 158 रिकॉर्ड। जहरीली फजा से शहरी सांस, गले और मुख्तलिफ इमराज में मुब्तला। टीबी माहिरीन का शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। हाई कोर्ट में स्मोक्ड दारू के लिए दरखास्तों पर समाअत। बसों की पॉलिसी पर अमल न करने वाले स्कूलों की रजिस्ट्रेशन की तजदीद का रिकॉर्ड तलब। अदालत की अंडर पासिस की तज़य्युन व आराइश में बेज़ाब्तियों की इंक्वायरी पर भी पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। स्मोक के खात्मे के लिए अवामी राबता मुहिम का आगाज। ट्रैफिक पुलिस ने ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर मुतारिफ करवा दिया। शहरी धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों की वीडियोस तस्वीर व्हाट्सएप करें। CTO अमारा अथर ने कहा कि वीडियोस मौसूल होने पर गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और स्मोक की रोकथाम के लिए पुलिस इन एक्शन। स्मोक का सबब बनने वाली गाड़ियों, फैक्ट्रियों और भट्टा मालिकान के खिलाफ कार्रवाइयाँ। तर्जमान पंजाब पुलिस के मुताबिक रवा साल 930 मुकदमात दर्ज हुए और 722 मुलजिम गिरफ्तार। शहर में मौसम के पल पल बदलते अंदाज। दिन में गर्मी और रात में ठंडक का एहसास। हवाएं चलने से गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। कम से कम दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे में बारिश का कोई इम्कान नहीं। मौसम बदलते ही डेंगू भी जोर पकड़ने लगा। 24 घंटे में पंजाब में 36 मरीज सामने आ गए। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने एदाद-ओ-शुमार जारी किए। महकमा सेहत के मुताबिक 2 मरीजों का ताल्लुक लाहौर से है। रमज़ान साल अब तक 703 केसेस रिपोर्ट हुए।
शहर को साफ सुथरा बनाने का आज़्म, डिप्टी कमिश्नर लाहौर का मुल्तान रोड फ्रूट और सब्जी मंडी का दौरा, सफाई सुथराई के इंतजामात का जायजा लिया। उधर सैयद मूसा रजा का इस्लामिया गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मुल्तान रोड का अचानक दौरा, बच्चों की निसाबी सरगर्मियों और सहूलियात के बारे में पूछा गया। लाहौर की एटीसी अदालत नंबर 1 में जज तैनात न होने का केस, हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रार से स्पेशल कोर्ट्स के जजेस तैनात करने से मुताल्लिक रिपोर्ट तलब कर ली। रिमार्क्स दिए कि बताया जाए पंजाब हुकूमत स्पेशल कोर्ट्स के जजेस का नोटिफिकेशन कब कर रही है। खलीलुर रहमान कमर हनी ट्रैप केस, मुलजिम यासिर की जमानत खारिज का तहरीरी फैसला जारी। लिखा, तफ्तीश में सामने आया है कि मुलजिम यासिर ने खलीलुर रहमान कमर से रकम का मुतालबा किया है। मुलजिम से माल मुकदमा भी बरामद हुआ। एटीसी ने 2 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। मुफ्ती अब्दुल कवी को महकमा एक्साइज का सफीर मुकर्रर करने का मामला, ओहदे से हटाए जाने वाले डायरेक्टर के खिलाफ इंक्वायरी रिपोर्ट आज जमा करवाए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक मोहम्मद आसिफ के खिलाफ पीडा एक्ट समेत मुख्तलिफ शोबों के तहत कार्रवाई की जाएगी। जावेद बट कत्ल केस की तहकीकात में अहम पेशरफ्त, पुलिस ने शूटर समेत 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ज़राए के मुताबिक शूटर अजहर बट उर्फ नाजी बट और इलियास को KPK से गिरफ्तार किया गया। शूटर अजहर बट ने जावेद बट को बाकायदा रैकी करके कत्ल किया। शहर में डाकू राज बरकरार, जजेस कॉलोनी भी गैर महफूज। जुडिशल कॉलोनी में जस्टिस शरीफ हुसैन मरहूम के घर डकैती की नाकाम कोशिश, अहल खाना के शोर मचाने पर डाकू घर से फरार हुए। पुलिस ने CCTV फुटेज लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है, मुल्ज़मान की तलाश जारी। FIA NCB इंटरपोल की बड़ी कार्रवाइयाँ, संगीन जराम में मतलूब 2 खतरनाक इश्तिहारी गिरफ्तार। मुल्ज़मान को AI से गिरफ्तार करके पुलिस के हवाले कर दिया गया। मुल्जिम इमरान और असगर मुख्तलिफ मुकदमात में पंजाब पुलिस को मतलूब थे। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जाएगी। तैयारियां उरूज पर हैं। गली मोहल्ले, बाजार और मसाजिद सब्ज झंडियों और बरकी कुमकुमों से सज गए हैं। आशिकान रसूल का खाना काबा और मस्जिद नबवी के खूबसूरत मॉडल्स बनाकर सरवर कायनात से इजहार अकीदत। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की ज़ेर सदारत अहम इजलास, 12 रबीउल अव्वल पर सूबे के सिक्योरिटी इंतज़ामात का जायजा। कहा, लाहौर में 10,000 से ज़ायद अफसरान और अहलकार तैनात होंगे। दहशतगर्दों, शरपसंद और मुल्क दुश्मन अनासिर पर नजर रखने की हिदायत करती। अमनो अमान और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ का अज़्म, लाहौर पुलिस के सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन का सिलसिला जारी। रमा साल अब तक 3014 सर्च ऑपरेशन हुए। कानून शिकनी पर 1380 अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई, 254 इश्तिहारी भी गिरफ्तार किए गए। लाहौर समेत मुल्क भर में आज ओजोन प्रोटेक्शन डे मनाया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि ओजोन प्रोटेक्शन कुराए अर्ज पर जिंदगी की बका के लिए निहायत अहम है। माहौल दुश्मन सरगर्मियों से ओजोन तह को शदीद नुकसान पहुंचा। माहौलियाती तब्दीलियों, बीमारियों और दीगर खतरात का सामना करना पड़ रहा है। और पाकिस्तान अंडर 17 फुटबॉल टीम को साफ चैंपियनशिप के लिए NOC जारी। कौमी जूनियर टीम आज इस्लामाबाद से भूटान रवाना होगी। चैंपियनशिप 20 से 30 सितंबर तक भूटान के शहर थमिस्पो में खेली जाएगी। कौमी टीम पहला मैच नेपाल के खिलाफ 21 सितंबर को खेलेगी।